नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। सोल परफेक्शन, फैंसी मटेरियल, एसेट फ्रॉम सिलोनिया ब्राउन्स बुक सोल परफेक्शन, चैनल मटेरियल। इज डे स्पेंट विदाउट सम काइंड ऑफ ऑडिट ऑफ योर सेल्फ इज ए डे लॉस्ट। ए डे विदाउट डूइंग समथिंग फॉर समवन एल्स is a day lost. The perfection of your soul is not only seeing the light but bringing the light to others. To minister to someone means to serve their needs. Show your truth to others. It does not do any good if you keep your truth inside and don't show it to anyone. That does not mean that you have to show it down their throats, but at least you will know that you have given them your truth. You must try to love everyone's soul and wish them the best, but you certainly don't have to like their behavior or actions. To stay around a person that you intensely dislike is wrong. Many marriages, friendships, and family relations are built upon trying to stay around a person that one cannot tolerate. This causes you guilt and heartache and stunts your spiritual growth. You are laboring so hard to be perfect for no reason. Again, Jesus recommends that you pick up your pallet and walk away. When you give someone else advice, all human beings are filled with advice for everyone. Don't ever give advice that you think will apply to you or what you would like. Try to be objective. That is the most spiritual road. Whenever someone asks you for an opinion or advice, don't internalize it. Rather, try to put yourself in that person's place. There again is a very spiritual modification. Care more for yourself, reward yourself. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। Soul Perfection, Fancy Material, aside from Serena Brown's book, Soul Perfection, Channel Material. Each day spent without some kind of audit of yourself is a day lost. A day without doing something for someone else is a day lost. The perfection of your soul is not only seeing the light but bringing the light to others. To minister to someone means to serve the needs, show your truth for others, and it does not do any good if you keep your truth inside and don't show it to anyone. That does not mean that you have to show it down their throats, but at least you will know that you have given them your truth. You must try to love everyone's soul and wish them the best, but you certainly don't have to like their behavior or actions. They stay around a person that you intensely dislike is wrong. Many marriages, friendships, and family relationships are built upon trying to stay around a person that one cannot tolerate. This causes guilt and heartache and stunts your spiritual growth. You are laboring so hard to be perfect for no reason. Again, Jesus recommends that pick up your pallet and walk away. When you give someone else advice, all human beings are filled with advice for everyone. Don't ever give advice that you think will apply to you or what you would like. Try to be objective. That is the most spiritual road. Whenever someone asks you for an opinion or advice, don't internalize it. Rather, try to put yourself in that person's place. There again is a very spiritual modification. Care more for yourself, reward more yourself. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को हम बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। आत्मा की पूर्णता, फ्रांसीसी सामग्री, स्वयं को किसी प्रकार की समीक्षा किए बिना बिताया गया प्रत्येक दिन एक खोया हुआ दिन है। किसी और के लिए कुछ किए बिना बिताया गया दिन बर्बाद हुआ दिन है। आपकी आत्मा की पूर्णता केवल प्रकाश को देखना नहीं है, बल्कि दूसरों तक
प्रकाश पहुंचाना है। किसी की सेवा करना का अर्थ है उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करना। दूसरों को अपना राय दिखाएं। अगर आप अपना सच अपने अंदर ही रखते हैं और किसी को नहीं दिखाते तो इससे कोई फायदा नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसे उसके गले में उतारना है, लेकिन कम से कम आपको पता चलेगा कि आपने उन्हें अपना सच बता दिया है। आपको हर किसी की आत्मा से प्यार करने और उनके लिए शुभकामनाएं देने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आपको निश्चित रूप से उनके व्यवहार या कार्यों पर को पसंद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने की कोशिश पर आधारित होते हैं जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे आपको अपराध बोध और दिल का दर्द होता है और आपकी आध्यात्मिक वृद्धि बाधित होती है। आप बिना किसी कारण के परफेक्ट बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। फिर से यीशु आपको सलाह देते हैं कि आप अपना पलंग उठाएं और चले जाएं। जब आप किसी और को सलाह देते हैं, सभी मनुष्य हर किसी के लिए सलाह से भरे हुए हैं, तो कभी भी ऐसी सलाह ना दें जो आपको लगता है कि आप पर लागू होगा या जो आपको पसंद आएगी। वस्तुनिष्ठ होने की कोशिश करें। यही सबसे आध्यात्मिक मार्ग है। जब भी कोई आपसे कोई राय या सलाह मांगे तो उसे अपने अंदर ना लें, बल्कि खुद को उस व्यक्ति की जगह पर रखने की कोशिश करें। फिर से यह एक बहुत ही आध्यात्मिक बदलाव है। अपना ज्यादा ख्याल रखें, खुद को पुरस्कृत करें। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। आत्मा की पूर्णता फ्रांसिस सामग्री स्वयं को किसी प्रकार की समीक्षा किया बिना बिताया गया प्रतिदिन एक खोया हुआ दिन है। किसी और के लिए कुछ किए बिना बिताया गया दिन बर्बाद हुआ दिन है। आपकी आत्मा की पूर्णता केवल प्रकाश को देखना नहीं है, बल्कि दूसरों तक प्रकाश पहुंचाना है। किसी की सेवा करना का अर्थ है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। दूसरों को अपना सच दिखाएं। अगर आप अपना सच अपने अंदर ही रखते हैं और किसी को नहीं दिखाते तो इससे कोई फायदा नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि आपको इसे उनके गले में उतारना है, लेकिन कम से कम आपको यह पता चलेगा कि आपने उन्हें अपना सच बता दिया है। आपको हर किसी की आत्मा से प्यार करने और उनके लिए शुभकामनाएं देने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आपको निश्चित रूप से उनके व्यवहार या कार्य को पसंद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने की कोशिश पर आधारित होते हैं जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे आपको अपराध बोध और दिल का दर्द होता है और आपको आध्यात्मिक वृद्धि में यह बाधित होती है। आप बिना किसी कारण के परफेक्ट बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। फिर से यीशु आपको सलाह देते हैं कि आप अपना पलंग उठाएं और चले जाएं। जब आप किसी और को सलाह देते हैं, सभी मनुष्य हर किसी के लिए सलाह से भरे हुए हैं, तो कभी भी ऐसी सलाह ना दें जो आपको लगता है कि आप पर लागू होगा या आपको पसंद आएगी। वस्तुनिष्ठ होने की कोशिश करें। यही सबसे आध्यात्मिक मार्ग है। जब भी कोई आपसे कोई राय या सलाह मांगे तो उसे अपने अंदर ना लें, बल्कि खुद को उस व्यक्ति की जगह पर रखने की कोशिश करें। फिर से यह एक बहुत ही आध्यात्मिक बदलाव है। अपना ज्यादा ख्याल रखें, खुद को पुरस्कृत करें। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।